of us, most of us are having best friends. Yes. So, like we stick to our besties, similarly, the atoms also stick to the other atoms. And that stickness or the connection with the other atoms is known as chemical bond. Now, bonding is also of two types, ionic bonding and covalent bonding. Let me explain you with a very simple example. Say, suppose there is a student who is sitting in a canteen without lunch, having no money. So one of the other student came to him and said, I have an extra sandwich, you may take this. So that's a one kind of a bonding in which they are sharing a relationship of give and take, right? So that student who has given a extra sandwich has a positive charge, and the student who has taken that extra sandwich got the negative charge. Similarly, the atoms do so. Likewise, the other student also come to the student who was not having lunch. That other student said, let's eat this chapati together. So that's what they are sharing. What are they doing? They're sharing. Similarly, in some of the cases, atoms also share electrons. So they form the another bond that is known as covalent bonding. So there are two types of chemical bonds altogether. One is ionic bond, which is formed by give and take, lane or din, right? So one is giving and the other one is taking. And covalent bonding is done by sharing. When they use it together, that is known as sharing of electron. And mark my words, ionic bonding is much, much, much more stronger then covalent bonding that you will come to know. So ionic bonding कैसे हो रहा है बच्चा? By giving and taking electrons. So atoms also like to connect with the other atoms. Think of a world when atoms are not connecting. If they will not connect, they will not form the new substances. We have thousands of substances, chemical compounds with us. That's because of chemical bonding. So hello 10th class. In today's lecture, I will be explaining you chemical bonding, right? That is a force which link the atoms in a molecule or a compound. And that chemical bonding can be done in two ways. What are the two ways? One is ionic, which is done by gaining or losing electrons. And second one is the sharing of electron. Neither I am giving nor I am taking. We will use it together. Now, what is the need of chemical combination? Think of few students or few people around you who doesn't like to intermingle. They have the followers. Think of saint and sadhus. वो क्या करते हैं? They don't have friends, but they have the followers. Likewise, there are certain elements or atoms they don't make friends because they are self-satisfied. They don't feel like connecting with other, but they other atoms like other people follow saint and sadhus. Similarly, all the atoms would like to follow the inert gases or noble gases. Now we understand the reason why they follow it. So here we will understand the inertness of noble gas. अब noble gases क्या होती हैं बच्चों? They are chemically unreactive. मतलब वो react नहीं कर रही. They will never undergo chemical bonding. So noble gases, we have 6 noble gases altogether: helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So here I have listed all the noble gases. If you look at their electronic configuration carefully, what is so similar? Right? The outermost shell are completely filled. If you talk about helium, children, helium is the lightest gas. Right? It is the only noble gas having 2 valence electrons. Rest all the noble gases having 8 valence electrons in their outermost shell. So, what do you understand by this? The motive of any atom is to completely fill their outermost electron. Like our motive is to fill our tummies whenever we are hungry. So similarly, atoms also always try to fill up their outermost shell, right? And they try to complete their octet. In few atoms, they try to complete their duplet. For example, hydrogen love to complete its duplet. Lithium will complete its duplet, but they try to achieve, all the atoms try to achieve their inert gas, nearest inert gas configuration.
अंडरस्टूड? लाइक हाइड्रोजन के जो नियर इनर्ट गैस है वो कौन सी है? हीलियम है. सो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेगा? अपना डुप्लेट. इफ यू टॉक अबाउट oxygen, right? If you talk about sodium, they try to gain the electronic configuration of neon because they like closer to it. So, as a 10th class student, I expect कि आप सबको 1 to 20 elements अच्छे से पता है. That is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से पता होनी बहुत जरूरी है. सो आउटर मोस्ट शेल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड. This is why we need to atoms need to undergo chemical combination. At electron arrangement in their atoms is very stable. अब कैसा electron arrangement stable माना जाता है? Completing its octet or completing its duplet, उसको हम कैसे मानते हैं? The electron arrangement is too stable. Valence electrons cannot be added or removed in case of noble gases. Why? Because their outermost shell is completely filled. तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को ना ही रिमूव किया जा सकता है और हम उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते. बिकॉज केमिकल कॉम्बिनेशन तभी होता है व्हेन देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन्स और व्हेन देयर आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. राइट चिल्ड्रन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स do not part in chemical reactions in case of inert gases. Why, children? Because their outermost electrons are completely filled. Since they do not take part in chemical reaction, so they will never undergo chemical bonding. इसमें इनमें chemical bonding कभी भी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके outermost shell completely filled है और इसकी वजह से इनका electron arrangement is very stable or due to which we cannot add or remove any excess electrons from them, and out due to which outermost electrons never undergo any chemical reactions. They do not participate in any chemical reaction. Is this clear? So in order to understand chemical bonding, first it is very important to understand the inertness of noble gas. So inertness of noble gas talks about the stability of an atom. तो आपको पता होना चाहिए कि एटम की स्टेबिलिटी स्टेट कौन सी होती है. एटम की स्टेबिलिटी स्टेट का होने का मतलब है अचीविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात हम कब करेंगे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो हर एटम को क्या करना है? अपना वैलेंस जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीटली फिल्ड करना है. अब उसी के लिए ईदर द एटम विल गेन or atom will lose or atom will share. Right, children? We will understand this in more detail, right? What do atoms basically do to undergo chemical combination, right? They either lose their electrons or they gain their electrons, and this can also be done by sharing of electrons. लूजिंग इलेक्ट्रॉन किस केस में होगा ये आप ध्यान रखेंगे. इसके लिए सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए. एटम्स हैविंग 1, 2 or 3 electrons, right? They always lose. Atoms having 1, 2 or 3, I should precisely say valence electrons. Okay? They always lose electrons. Atoms having 4 valence electrons, they always share their electrons. वो क्या करेंगे? हमेशा शेयर करेंगे. Atoms having 5, 6 or 7 valence electrons, they always gain electrons. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि 1, 2, 3 वाले लूज कर रहे हैं, 4 वाले शेयर कर रहे हैं और 5, 6, 7 वाले गेन कर रहे हैं? Look, atoms has to utilize lot of energy. Like whenever we are doing something, our body needs energy to do anything, right? Similarly, atoms also require energy either to lose or to gain or to share. So atoms have sufficient energy
टू डोनेट 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 तक आते आते एटम के पास एनर्जी नहीं रहता, इनफ एनर्जी नहीं रहता कि वो लूज कर पाए। सो इट एंड अप शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, वो आराम से शेयर कर लेता है। अब 5, 6 और 7 के केस में वो बिल्कुल, जब 4 के केस में ही वो लूज नहीं कर पा रहा, तो 5, 6 और 7 के केस में वो क्या करता है, वो गेन करना स्टार्ट कर लेता है। क्योंकि देयर आर एटम्स हु आर डोनेटर्स, जो डोनेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अब कोई देने वाला है, वो तभी तो देगा जब कोई लेने वाला होगा। सो जो एटम्स के पास 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं। अब इसको सिंपल सा समझो। एटम्स का मेन जॉब होता है अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना। मींस स्मॉलर एटम्स के केस में डुप्लेट कंप्लीट करना, 2 कंप्लीट करना अपने के शेल में। अगर एल एम एन ओ कोई भी शेल है तो उसमें उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। सो अब क्या होगा, अगर 1, 2, 3 है तो वो डोनेट करेगा। लेट्स राइट लाइक दिस, 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम और 5, 6, 7 वाले। अब 1, 2, 3 वालों को क्या करना है, उनके लिए इजी है कि भाई 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एग्जाम्पल लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1। ठीक है, अब इसको इस एग्जाम्पल से समझो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 7। अब 1 वाला हमें पता है कि डोनेट करेगा और 7 वाला एक्सेप्ट करेगा। सो अगर ये डोनेट कर देता है, सो इसकी के शेल विल बी एल शेल विल बिकम द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल अगर 8 हो गई तो उसके लिए इजी क्या है, 1 डोनेट करना या 7 एक्सेप्ट करना। 7 तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि 7 डोनेट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट हो जाएगा और वो इजिली 2, 8 बना लेगा, इट बिकम स्टेबल। तो अब 1 वाला हमेशा डोनेट करता है और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि 1 को 1 डोनेट करने की नीड है और 7 अगर +1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2, 8, 8। और जब डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना डोनेट कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। डिपेंड्स अपॉन कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो क्लोरीन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो इट विल फॉर्म Cl-। सो दिस इज नोन एज क्लोराइड आयन। अब जितने भी अनायंस बनते हैं उनमें एटम का नेम चेंज होके इन से आइड बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड, फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड, नाइट्रोजन से बन जाएगा नाइट्राइड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी एटम्स अपनी आयनिक फॉर्म बनाते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, दे फॉर्म कॉरस, उनके नेमिंग में क्या चेंज आ जाता है, दे फॉर्म आइड्स। राइट चिल्ड्रन, सो 1 विल डोनेट एंड द 7 1 विल एक्सेप्ट, सो दे मेक अ पेयर। ठीक है, ऐसे वो केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे, दे विल कंबाइन केमिकली एंड व्हाट दे बोथ आर डूइंग टुगेदर। अगर 1 वाला डोनेट कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 7 वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका भी मोटिव क्या है, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसने डोनेट कर दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8। राइट चिल्ड्रन, जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गई तो ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका जो हो गया वो 8 हो गया। वैलेंस शेल अब m नहीं रही, वैलेंस शेल अब k हो चुकी है एंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड। तो उसने अचीव किया, बिल्कुल किया। अब 288 क्लोरीन के नियर जो इनर्ट गैस होती है वो होती है आर्गन, उसका होता है 288। एंड सोडियम के नियर जो इनर्ट गैस होती है वो होती है नियॉन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8। सो व्हाट दे बोथ हैव डन, they have tried to follow, जैसे saints और sadhus को everyone around follow because they are contented, they have lot many things to give away. Similarly, they become the followers, they become the role models. Here also inert gas, noble gas, ये क्या है सब एटम्स के लिए एक फॉलोअर, राइट, दे फॉलो इट। ये एक रोल मॉडल है जिसको वो फॉलो करते हैं। So what all atoms are trying to do? They are trying to achieve inert gas configuration. So they have 3 major ways to do it: by losing, by gaining. So lose or gain, it runs parallelly. It always runs parallelly. ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं।
अगर एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा. यू रिमेंबर दैट स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल, हु इज हैविंग एन एक्स्ट्रा सैंडविच. तो उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने दे दिया, जिसके पास नहीं था उसने ले लिया. तो टू थिंग्स आर हैपनिंग पैरेलली. सो टू वाला क्या करेगा, वो अपने टू डोनेट कर देगा. और सिक्स वाले को एट करने हैं, इसको प्लस वन करना था तो इसने वन से ले लिया. इसको प्लस टू करना है तो ये टू वाले से, टू, द atom having two valence electron उससे ले लेगा. it will accept it. and the one which is having five, उसको भी एट करना है तो उसको प्लस थ्री चाहिए. तो वो किस एटम से लेगा, वो थ्री वाले से लेगा. अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऐसा हमेशा है कि वन वाला, सेवन वाला वन से ले रहा है, सिक्स वाला टू से ले रहा है और फाइव वाला थ्री से ले रहा है? इज इट नेसेसरी? नो. दिस इज वन ऑफ द वे. अब सेवन वाला वन से ही लेगा, राइट. अब जो सिक्स वाला है, वो the two atoms of one valence electron may come to satisfy the atom with six valence electron. तभी तो वो अपना एक एक आके दे देंगे और क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी. तो ऐसा भी होता है. फाइव वाले केस में डायरेक्टली या तो वो थ्री से ले लेगा, या फिर वो वन वाले से ले लेगा. वन, three atoms with one valence electrons will come to give away to fifth one, the atom having five valence electrons. So are you getting? ये lose और gain कैसे हो रहा है? So it can happen both the ways. And sharing, sharing वाले में क्या हो रहा है कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है. And we are going to use it together. हम इसे साथ में यूज करने वाले हैं. शेयरिंग के केस में लूज और गेन नहीं होता. Means when the two atoms or more than two atoms come together and share electrons, what do? They always use it together. So using together is known as sharing of electrons. Right, children? Now we will understand more about the ions. अब ions को हम थोड़ा सा और समझते हैं. थोड़ा मैंने आपको यहाँ समझाया था. Metals always lose electrons. They are forming cations. Like sodium is a metal, magnesium is a metal, and योर एल्यूमिनियम इज अ मेटल. अब इसकी भी लिस्ट, इसको भी आप आराम से समझ सकते हो. 1 to 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. एटम्स हैविंग 1 2 3, सभी कुछ उसमें है. 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मेटल. ठीक है. Exception is always there in science. So hydrogen is an exception, having one valence electron, but it is a non-metal. When you're talking about four valence electrons, right? जिनके पास four valence electrons होते हैं, they are semi-metals. यहाँ पे भी एक exception आ जाता है, that is carbon. Carbon का atomic number होता है 6, उसकी electronic configuration होती है 2,4. राइट चिल्ड्रन. सो कार्बन के केस में क्या हो रहा है, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसे शेयर करना चाहिए और वो सेमी मेटल होना चाहिए या मेटलॉइड होना चाहिए. बट वो ये नहीं है. दिस इज एन एक्सेप्शन. इट इज अ नॉन मेटल बिकॉज ऑफ इट्स अदर प्रॉपर्टीज. 5 6 7 वाले जो होते हैं, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले, दे आर ऑलवेज नॉन मेटल्स. राइट चिल्ड्रन. So here, metals have the tendency to lose electrons, and when they lose electron, they always form cations. Although ये सारी चीजें हम नाइन्थ में सीख कर आते हैं, but just for the recap purpose, right? कि आप उसको समझें. अगर मैं आपको समझाऊं कैटायन के केस में क्या हो रहा है. लुक, यू नो दैट एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. दैट मीन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बैठे हुए, right? Nucleus has lot of protons. So let's say this is a nucleus. इसके पास let's talk about sodium. सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने किया था. सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are arranged outside. You may excuse me for the electronic shells, they are little shabby. So here children, 2 in the K shell, 8 in the L shell. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and one outside. ठीक है. अब this one has been donated. अब ये one donate कर दिया गया. तो अब the atom is no more electrically neutral. So it has a 10 negative charge and 11 positive charge. So plus 11 minus 10. आप इसको ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए. plus 11 and minus 10 will give you plus 1. सो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस.
गॉट इट चिल्ड्रन? अब क्लोरीन को भी समझो ऐसे ही आप, कैटायन क्यों फॉर्म हो रहा है, प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, राइट? बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट? इसके पास इसका सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28, राइट चिल्ड्रन? तो इट हैज डोनेटेड इट्स वन इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, सो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये अभी हम सीख कर आ रहे हैं। अब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास 17 से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट प्रोटॉन्स तो 17 ही है ना। तो आप खुद से देखो, प्रोटॉन्स नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -18, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज कितना है, +17, सो द रिजल्टेंट चार्ज विल बी -1। सो व्हेन इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, इसका वन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एंड व्हाट इट विल फॉर्म, नेगेटिव anion, right? It will gain the negative charge. Upon gaining electrons, the negative charge will increase by 1, and that is why it we always put -1 over chloride. Got it, children? जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं उतना नेगेटिव चार्ज। द रूल इज वेरी सिंपल। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप आयनिक बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ पाएंगे। नाउ विल स्टार्ट विद आयनिक बॉन्डिंग एंड स्लोली we will move towards the covalent bonding. अब ionic bonding में क्या हो रहा है, one atom is transferring the electrons to the other atom, तो ये give and take वाला relation होता है। So when the two opposite charges comes, right, one with positive, one is negative, the two atoms link together, they connect together by an invisible force that connects the two atoms together, and that force is known as electrostatic force. And the substances, the chemical compounds which are formed by give and take of electrons are said to be ionic compounds or ionic molecule. अब ionic molecules के बीच में कौन सा force exist करता है, that invisible force. You know that opposite charges attract each other, opposite charges attract करते हैं, and that invisible force of attraction is known as electrostatic force. Very simple. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, cation is donating, transferring electrons to the anion. Metal is donating electrons to the non-metal. So I told you in my last session that आयनिक कंपाउंड, जब हम आयनिक क्लोराइड्स पढ़ रहे थे, आयनिक हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे, तो वो आयनिक क्यों थे, तब मैंने सिर्फ आपको यहाँ तक बता के छोड़ दिया था कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ यू नो द रीजन कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटल्स आर डोनर्स एंड द नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो रही है। वो डोनेट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं। सो व्हेन दे आर कनेक्टिंग टुगेदर, देयर इज an invisible force that exists between the two, which connect the two opposite charges together. That invisible force is known as electrostatic force. Right, children? अब आप ये चीज अपनी फ्रेंडशिप से भी देख सकते हो। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज गिवर, आपको होमवर्क चाहिए वो होमवर्क देंगे, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग तो दे आर गिविंग इट, राइट, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। तो कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है, कुछ फ्रेंडशिप में हम शेयर भी करते हैं, लाइक वन ऑफ योर फ्रेंड फॉरगॉट टू गेट अ book in the classroom, so you or both are sharing it together, so that is known as sharing. So जो give and take है, that connects more देन शेयरिंग। वाई, क्योंकि जब आपको कोई दे रहा है तो आप यू फील ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्सन। सिमिलरली एटम एज अ मेटल इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द नॉन मेटल। तो एटम के पास एक्स्ट्रा है, अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं अगर अपने फ्रेंड को दे दूंगी, माई फ्रेंड विल फील थैंकफुल अबाउट इट, so the bonding will become more stronger because of that invisible force. What is that invisible force? Electrostatic force, right? How we are so much connected to our parents, सोच के देखो, what do our parents do? They keep on giving, 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 and we keep on accepting.
टिल अ सर्टेन एज। तो वो क्या है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके साथ होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। वाई, बिकॉज दे आर द गिवर्स। तो आप अपने पेरेंट्स को मेटल समझो और अपने आप को फिलहाल एक सर्टेन एज तक नॉन मेटल समझो, बिकॉज दे आर गिविंग एंड यू आर एक्सेप्टिंग। दैट इज वाई द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन इज सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इज गिव एंड टेक। तो जब भी गिव और टेक से कनेक्शन बनता है, एक बॉन्डिंग होती है, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। तो हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में कैसा होता है, ऑलवेज गिवर, दे ऑलवेज रिमेन गिवर, राइट। सो वो बॉन्डिंग कैसी हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, जो कैसे बनी है, that is formed by give and take and transfer. They keep on transferring, whether their wisdom, whether their they support you in your education, they take care of you, so they keep on giving you and you keep on accepting. So the bond which is formed is known as ionic bond, and the force which exists between the atoms to of a compound formed by an ionic bonding, that is known as electrostatic force. Now moving ahead, we will learn with certain example and make sure class 10th की ये वाला जो topic है, ये आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन रहने वाला है। सो उसके लिए आपको यू शुड बी थरो विद योर एटॉमिक नंबर। कम से कम आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 के जरूर आने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा की नीड नहीं रहती 9th और 10th ग्रेडर्स को। सो 1 to 20 आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। सो हियर वी आर लर्निंग अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग। आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखेंगे। यहाँ पे आप आयनिक बॉन्डिंग अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, now I am telling you the steps you're going to do when the question comes. So here with this, we are going to learn the formation of sodium chloride. So you know about sodium chloride, the very basic salt, right? हमने उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन सीखा था, बट ये बॉन्ड करके कैसे हो रहा है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टुगेदर, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर, राइट। तो ये हमें समझना है। सो सोडियम is a metal with 11 atomic number. That means it has 11 electrons. So electronic configuration will be 2, 8 and 1. So what is more suitable? Connect with the concept. 1, 2, 3 वाले डोनेट करते हैं, 5, 6, 7 वाले एक्सेप्ट करते हैं। 4 की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आयनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। So it has one valence electron. So it will donate that one electron. So it has one less electron than proton. So which charge will be more? One positive charge will be more. So sodium ion. अब सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 281। सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बच्चा, 28, बिकॉज उसने डोनेट कर दिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, +1। क्यों, बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। सिमिलरली क्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, सो क्लोरीन एटम विल ऑल्सो कम, वो आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है। सो ऑल टुगेदर उसको, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्सेप्ट 1 मोर टू मेक 8 ऑल टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। And what it will gain, it will gain one negative charge, right children? So here what we can see, it has one excess and it has one less। तो उसने अपना डोनेट किया और क्लोरीन ने अपना एक्सेप्ट कर लिया। नाउ वी विल शो इट टुगेदर थ्रू अ reaction in which we are going to show the electron transfer. So we are going to show only the valence electrons, because only valence electrons participate in chemical bonding. Electrons present in the inner shells like K shell, L shell for sodium and chlorine, they never participate। पार्टिसिपेट केमिकल बॉन्डिंग में कौन करता है, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बात हम समझेंगे। सो सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन हैज 7। सो व्हाट हैज सोडियम डन, ट्रांसफर्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन। सो हियर सोडियम बिकम्स द डोनर एंड क्लोरीन बिकम्स द एक्सेप्टर। तो सोडियम के पास आता है +1 एंड क्लोरीन के पास आता है -1। एंड व्हाट विल इट फॉर्म, it will form sodium chloride। क्या बना लेगा ये, सोडियम क्लोराइड, राइट चिल्ड्रन। So this is the electron shell model,
राइट आपको इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल भी आता है कि आप इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के थ्रू दिखाएं. सो यू हैव टू शो 3 shells, that is K, L and M. So M shell has 1 electron which has been transferred to the chlorine atom. So now what are you showing? You're showing the transformation. Now the sodium is not having 3 shells. It is having only 2 shells which are completely filled. Chlorine is having 3 shells, but these are completely filled. Earlier it was having 7 valence electron. Now it is having 8 valence electrons. So they combine together to form a compound, and that compound is known as sodium chloride. So this is how bonding takes place, by give and take. So one atom is giving and one atom is accepting. Metals always give and non-metals always accept. You know the reason, because metals के valence electrons कितने होते हैं, 1 to 3. तो उनके पास इतना, एटम के पास इतना ही एनर्जी होता है कि वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक डोनेट कर पाए. सो मोर देन 3 इट इज नॉट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू गिव अवे, तो वो नहीं दे पाता. तो 5, 6, 7 वाले क्या बन जाते हैं, वो एक्सेप्टर बन जाते हैं, राइट. So with this, we have understood one of the example of ionic compound. Now we will understand, I will make you understand one more example to give you more clarity. Learn about formation of magnesium chloride. अब magnesium chloride हमने 9th क्लास में हमें सिखा दिया गया था, crossover of valency, and that is MgCl2. हम सिंपल करते थे Mg2 plus Cl minus gives MgCl2. अब हम इसको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू समझते हैं कि what is exactly happening. तो उसके लिए सबसे बेसिक थिंग आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम which is 12. So that means magnesium is having 12 electrons altogether, which says that how they are going to arrange in electronic shell, that is 282. कैसे arrange करेंगे ये 282? K shell will take 2, L has maximum capacity of 8, and the remaining one will fit themselves into M shell. Now what will happen? इट हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हमें पता है 1, 2, 3 वाले डोनेट करेंगे तो मैग्नीशियम इजी हो जाएगा कि वो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है उसको उसने डोनेट किया और क्या बना दिया, Mg2+. राइट चिल्ड्रन. So magnesium will form Mg2+ because it has donated its 2 electrons. So it is left with the electronic configuration 2A. 2 in the K shell and 8 in the L shell. Now, can you see it has achieved its inert gas configuration, nearest inert. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, नियॉन. दैट इज 10, एटॉमिक नंबर इज 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2. तो ये समझना है आपको. अब आ जाओ, इसके पास 2 देने हैं, बट लेने वाला भी तो 2 होना चाहिए ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो दे रहा है तो वो एक साथ देगा. कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 देने की नीड आई है तो वो 1 दे देगा और 1 अपने पास रख लेगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ही डोनेट किए जाते हैं, जितने भी होते हैं 1, 2 और 3, राइट. अब हम बात करते हैं क्लोरीन की. So since chlorine has 17 electrons and 7 in the valence electrons, so what will happen? क्लोरीन को तो एक ही नीड है, बट मैग्नीशियम को कितने देने हैं, 2 देने हैं. So how they are going to bond together? What will happen, children? Now here 2 chlorine atoms will come. All together will accept 2 electrons. So ऐसा bonding करने के लिए इनको क्लब करना है. They have to bond together. So 2 chlorine atoms will come, will take 1 electron each from the 2 valence electrons of magnesium and thus form 2 chloride ions. तो अब आप ये समझ पा रहे हो कि जो डोनेट किए जाते हैं अगर 3 भी होंगे, जैसे एल्यूमिनियम इज Al3+, तो वो 3 देगा. तो अगर एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ करना है तो 3 क्लोरीन एटम विल कम, क्योंकि क्लोरीन की तो नीड 1 इलेक्ट्रॉन की है, बट एल्यूमिनियम को 3 देने. तो हाउ विल इट बॉन्ड विद क्लोरीन? 3 क्लोरीन एटम्स विल कम and bond, right, with 3 chlorine atoms will come and bond with aluminium. And here also has come and taken 3 valence electrons from the aluminium. तो ऐसे ही आपको समझना है, वहां पे कोई भी कंपाउंड आ सकता है. तो आपको ये बॉन्डिंग समझनी होगी कि कैसे, हाउ द एटम्स आर केमिकली कंबाइनिंग टुगेदर. So we were learning about the example of magnesium chloride, in which magnesium has to donate 2 electrons, whereas chloride has the acceptance of only 1 electron. So chlorine atom will come, right children? Chlorine atom will come
two chlorine atoms will come and take two electrons from the magnesium and thus form two chloride ions. So magnesium ने क्या किया, एक अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट क्लोरीन एटम को, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया सेकंड क्लोरीन एटम को, and thus forms what, Mg2 plus, and two chloride ions are formed. So Mg2 plus and two chloride ions will form MgCl2. तो अब इसमें समझना है हमें, magnesium atom was one combined with two chlorine atoms to form magnesium ion and chloride ions, and the two will form magnesium chloride. इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, MgCl2, बिकॉज मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने थे, क्लोरीन को वन ही एक्सेप्ट करना था, तो टू क्लोरीन एटम्स आ गए कि चलो मैं दूसरा भी आ गया कि एक मुझे दे दो। तो एक फ्रेंड के पास दो एक्स्ट्रा सैंडविच है, तो दो कह रहे हैं कि चलो वन वन करके मैं एक एक्स्ट्रा सैंडविच उसको भी दे दूं और उसको भी दे दूं, तो दो फ्रेंड्स का काम मुझसे सॉर्ट हो गया। तो सिमिलरली हियर magnesium has bonded with two chlorine atoms by transferring one electron to each, thus forming a new chemical compound which is known as magnesium oxide or magnesium chloride. So sorry. Now let's understand about magnesium oxide. अब magnesium oxide की अगर बात करो तो आप खुद से सोचो, right? Let's do it quickly. Magnesium has to donate two electron. Magnesium का atomic number होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 26, सो दे आर गोइंग टू कम टुगेदर, राइट? सो अब इसमें ये कौन सा वाला केस है, इसको 2 डोनेट करने हैं और इसको 2 के एक्सेप्टेंस चाहिए। सो मैग्नीशियम 2 डोनेट करके Mg2 प्लस बना देगा और ऑक्सीजन 2 एक्सेप्ट करके O2 माइनस बना देगा। सो राइट, सो दे आर गोइंग टू फुलफिल ईच अदर नीड and thus forming a compound which is known as magnesium oxide. So hope this is clear to you all. I have given you two examples, three examples. Now you have to practice it more. Practice with other compounds. Calcium oxide को बना के देखो, calcium chloride को बना के देखो, potassium chloride को बना के देखो. Try your hands on all these compounds to gain expertise in the ionic bonding. So with this, children, I have finished explaining you the ionic bonds. Now we are starting with the next type of bond, which is a covalent bond. ये थोड़ा easy going है, ये sharing से काम चला लेता है। अब इसमें भी जो sharing होती है, राइट, ये मोटिव इसका भी वही है कि नोबल गैस और इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, बट अब वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कैसे कर रहा है, वो शेयरिंग से कर रहा है। अब शेयरिंग कैन बी डन इन थ्री वेज, ईदर इट विल शेयर। अब शेयरिंग कैसे होती है, वो दोनों की साइड से होती है, राइट? शेयरिंग दोनों, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, वो दोनों ही अपना अपना शेयर लेकर आएंगे एंड दे विल यूज इट टुगेदर। तो अगर वन इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं तो वन पेयर इज शेयर्ड, अगर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच लेकर आ रहे हैं तो टू पेयर इज शेयर्ड, वन पेयर हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड थ्री पेयर हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जब वन पेयर शेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब टू पेयर शेयर हो रहे हैं हम उसको क्या बोल रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब थ्री पेयर शेयर हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। So one pair share hota hai, we show it with one horizontal line, right? One electron on each side, showing that a pair of electron or two electrons are shared. Means each atom has come with the one electron and they are sharing it together, right? अब double bond में क्या हो रहा है, two pairs are coming, one here and one here. So you tell me how many electrons are shared here? Four electrons all together. So we show it by two horizontal lines. अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो रहा है, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, सो वन टू एंड थ्री। So how many bonds are there? Three covalent bonds are formed, right? So we show it with a horizontal line. कोवलेंट बॉन्ड्स को हम हमेशा कैसे दिखाते हैं बेटा, वी शो इट विद हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस शोज दैट, क्योंकि हम इसमें कर्व नहीं दिखा रहे हैं। कर्व मींस इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड, वन हैज डोनेटेड, वन हैज एक्सेप्टेड, बट दिस इज अ स्ट्रेट line which is showing the electrons are with the atoms itself, but they are using each other. If they are using one electron from each other, that means single covalent bond is formed. If you are using two electrons from each other, four electrons are being shared, so they are forming double covalent bond. If they are using three electrons with one another, then they are all together using six electrons, and which bond is formed? Triple covalent bond is formed. So सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड को वी शो इट विद डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, राइट चिल्ड्रन?
सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर विद द एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से हमें थोड़ा क्लैरिटी अच्छी मिलती है कि ये हो क्या रहा है. लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन वापस से चलेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिसाइड कर रहा है. अब हाइड्रोजन एटम, one hydrogen atom with one valence electron has to bond together with the another hydrogen atom. अब इस फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के पास भी वन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब इनको नीड कितने की है? इट नीड्स वन मोर, राइट? तो अब वो क्या कह रहा है कि यू शेयर माइन, आई शेयर योर्स, एंड वी आर केमिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर. सो दे आर यूजिंग ईच अदर्स. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब फर्स्ट, लेट मी मार्क इट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. जब फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ने सेकंड का शेयर किया तो उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया. और जब सेकंड हाइड्रोजन एटम फर्स्ट से शेयरिंग कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, वो भी डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है. तो ये भी दोनों के लिए क्या हो जाती है? एक विन विन सिचुएशन हो जाती है. तो इसमें क्या किया? उसने डोनेट नहीं किया, क्योंकि वो डोनेट कर देगा तो वो खुद एम्प्टी हो जाएगा, राइट? और अब हाइड्रोजन के केस में उसने, जब वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो वो डोनेट नहीं कर रहा. वाई? बिकॉज जब भी टू नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, दे ऑलवेज प्रेफर टू शेयर, क्योंकि नॉन मेटल्स तो डोनेट करते नहीं है, दे ऑलवेज एक्सेप्ट. तो अब एक्सेप्टेंस का दूसरा वे क्या होता है? शेयरिंग, राइट? एक्सेप्टेंस का दूसरा वे क्या होता है बच्चा? शेयरिंग. अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के पास अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म होना है, सो वन क्लोरीन एटम विल केमिकली बॉन्ड विद अनदर क्लोरीन एटम, राइट? अब इसमें क्या हो रहा है? हर क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक, हर क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड व्हेन दे आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ईच, सो व्हाट विल हैपन? दे नीड वन मोर. अब वो क्या कह रहे हैं? दे आर कमिंग क्लोजर एंड दे आर शेयरिंग ईच अदर. सो दे आर बॉन्डेड टुगेदर, बट दे आर बॉन्डेड बाय शेयरिंग. तो अब फर्स्ट क्लोरीन एटम क्या कर रहा है? सेकंड का शेयर कर ले रहा है. सेकंड क्या कर रहा है? वो फर्स्ट का शेयर कर ले रहा है. तो फर्स्ट जब सेकंड का शेयर कर रहा है तो उसके पास 7 + 1 8 हो जा रहे हैं. और जब सेकंड फर्स्ट का शेयर कर रहा है तो उसके पास भी 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं. सो हाउ दे आर कनेक्टेड टुगेदर? नाउ यू टेल मी. हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स वर शेयर्ड, वन वन ईच. सो दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग एच, स्ट्रेट लाइन एच. सो राइट, यू आर शोइंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर अब आप क्लोरीन की बात करते हो, सो क्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. दे आर शेयरिंग वन वन ईच. सो वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड विद द अदर वन, thus forming a सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? अब हम एक और एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 के पास कितना है? सॉरी, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब हम ये समझते हैं, ये दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें कोई डोनर नहीं है. तो डोनर नहीं है तो दोनों अपने आप के साथ बॉन्डिंग कैसे करेंगे? नो वन इज रेडी टू डोनेट, नहीं ये रेडी है डोनेट करने के लिए. तो नॉन मेटल्स हमेशा शेयरिंग वाला रास्ता चूज करते हैं, राइट? मेटल्स जब सामने आ जाते हैं तो गिव एंड टेक हो जाता है. बट जब भी दो नॉन मेटल्स बॉन्डिंग करेंगे, वो हमेशा शेयरिंग, क्योंकि किसी में भी कोई भी एटम जो होता है नॉन मेटल का, वो डोनेट करने के लिए रेडी नहीं होता. तो फिर रास्ता क्या बचता है? ओनली शेयरिंग. जब कोई डोनेट करने के लिए नहीं है तो कोई एक्सेप्ट कैसे करेगा? सो वी आर लेफ्ट विद द चॉइस दैट इज शेयरिंग. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के पास भी क्या है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन को अगर वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को अगर वन मिल जाए तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. बोथ आर हैप्पी. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ने शेयर किया क्लोरीन के साथ उसका वन इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना शेयर करवाया. सो ऑल टुगेदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2. वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड. सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अमोनिया चिल्ड्रन, अमोनिया का एग्जांपल देख लो. नाइट्रोजन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 5. अब इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. और हाइड्रोजन, यू नो, हाइड्रोजन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. तो अब इसके पास हम ये क्या करेगा? ये अपने आउट ऑफ 5 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा, राइट? नाइट्रोजन के पास ऑल टुगेदर 5 है,
तो 5 में से वो 3 को शेयर करवाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। सो दिस वे अब उसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करी। सो इट हैज 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 more single covalent bond. Sorry, it is just fumbled up, right? And it has 1 more single covalent bond. So this way you can clearly see, children, hydrogen has completed its duplet. आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है. So here is a bond for duplet for hydrogen. Here also hydrogen has completed its duplet. Here also hydrogen has, let me start from here. हाइड्रोजन हैज कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट. अगर आप नाइट्रोजन को देखते हो बच्चा, इफ यू लुक एट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने क्या किया, इट हैज इट्स ओन 5, 3 it has shared with 3 respective hydrogen atom. And how many does it have now? 5 plus 3 makes the ऑक्टेट. तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. तो अभी तक जो आप एग्जांपल देख रहे थे उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल है, बट इसमें हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन क्लोराइड 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अमोनिया 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. राइट चिल्ड्रन? So with this, we have completed as examples of single covalent bonding. Now we will also look forward to see a double covalent bond. अब ये 4 electrons कैसे share हो रहे हैं और किस situation में share हो रहे हैं? Let's think about oxygen molecule, which is formed of 2 oxygen atoms. ठीक है? Oxygen का atomic number होता है 8. एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6. 8 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6. बोथ द ऑक्सीजन एटम आर इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग के में ऐसा पॉसिबल है. अब जब गिव और टेक हो रहा होता है तो वो ऑल टुगेदर होता है, बट शेयरिंग में अपॉन नीड शेयरिंग हो जाती है. लाइक 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से अगर मुझे 2 ही शेयर करने हैं तो मैं 2 शेयर कर सकता हूँ वो, और 4 आई कैन कीप इट एज इट इज विदाउट sharing, right? तो ऑक्सीजन भी यहाँ क्या कर रहा है, it has 6 valence electron, so out of 6 2 it has given for sharing. Similarly for the second oxygen atom, so all together they have shared 4 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किए, 4 electrons, 2 pairs. So how many covalent bonds are there? There are 2 covalent bond. तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डबल. डबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है. अब क्विकली वी विल सी द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज 6 and oxygen has 6, right? So carbon has 4, so it needs 4 more. And oxygen has 6, it needs 2 more. दोनों का मोटिव है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना. दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना. तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, राइट? 2 मोर चाहिए, तो इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो शेयर तभी कर पाएगा जब वो दूसरे 2 के साथ शेयर करेगा. सो हियर ऑक्सीजन इज sharing 2 electrons with 2 electrons of carbon. The second oxygen atom is also sharing its 2 electrons with 2 electrons of carbon. अब तो कार्बन के लिए क्या हो गया, कार्बन ने बॉन्डिंग किया, शेयरिंग के थ्रू किया, बट 2 ऑक्सीजन एटम ने आके उसका नीड फुलफिल किया. क्योंकि ऑक्सीजन एटम उसको 2 चाहिए, अगर उसको इफ इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली तो वो 2 के साथ ही शेयरिंग करेगा, अगर उसको 3 चाहिए होंगे तो वो 3 के साथ शेयर करेगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट चिल्ड्रन? सो हियर कार्बन को 4 चाहिए थे, बट 4 में तो ऑल टुगेदर 2 and 2 each, तो उसने 2 from 1 oxygen atom, 2 from 1 oxygen atom. Now you need to look here, how many have been shared, how many electrons have been shared here? 4 all together, that means 2 pair. So 2 pair वाला क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट हैज 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट चिल्ड्रन? अब हम इथीन देखते हैं, दैट इज C2H4. अब इथीन के केस में क्या है, देयर आर 2 कार्बन, राइट चिल्ड्रन? सो देयर द 2 कार्बन, तो दोनों की अपनी अपनी नीड है. एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन को तो भाई डुप्लेट कंप्लीट करना है और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो अब ये
फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बट ये जो कार्बन है अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसको 2 मिले। तो ऑलरेडी उसके पास 4 थे, 2 हो गए तो 6 हो गए। 2 इट नीड्स मोर, तो वो अपनी 2 जो लेफ्ट 2 की नीड है वो 2 हाइड्रोजन एटम से फुलफिल करवाएगा। So one hydrogen atom will come and share. Second hydrogen atom will come and share. Then what will happen? Single covalent bond will take place. Right? What will happen? Single covalent bond will take place. Here also the second carbon atom is doing the same thing. Here it is also sharing one electron with each respective carbon. So इन्होंने two electrons, 4 they were having, 2 shared with the first one. First is sharing with the second one, and 2 is coming from 2 hydrogen atoms. So altogether it makes it 8. Similarly, if we look at the second carbon atom, 2 it is sharing from the first carbon atom, 4 it was already having, plus 2 makes it 6, and 2 hydrogen atom has come to share 2 more. So what is it making? It is making 8 valence electrons. तो उसने अभी अपना octet complete कर लिया. This is how the double covalent bonding takes place. लर्न अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर वी हैव ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड टुगेदर। So we learn it with 2 examples, nitrogen and ethene. Right? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, N2 मॉलिक्यूल। इन सब चीजों को समझने के लिए और लॉजिक समझने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप खुद ब खुद उसकी नीड डिसाइड कर लोगे। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5। राइट चिल्ड्रन, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट नीड? 3। राइट, so when it is going to chemically combine with the other nitrogen atom, it has 5 electrons, right? अब हमें पता है कि शेयरिंग के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर हो जाए। जितनी नीड है अपॉन नीड शेयरिंग हो जाती है। सो 5 में से इट नीड्स 3 मोर, तो वो अपने 3 देगा शेयरिंग के लिए, क्योंकि उसको 3 और चाहिए। और यहाँ पे भी सेकेंड नाइट्रोजन एटम भी क्या कर रहा है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। सो इट हैज 5 ऑफ इट्स ओन, 3 it will share from the next nitrogen atom, and it will form its octet. Similarly, here also nitrogen atom is here. So it has 5 of its own. It has shared 3 more from the first nitrogen atom, and it has formed 8 valence इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो दोनों के लिए क्या हो गया, विन विन सिचुएशन। बट बाय डूइंग सो वी हैव टू चेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन शेयर्ड। 1 पेयर, 2 पेयर and 3 pair have been shared. So this is an example of triple covalent bond. So this I have written here because you have to write this way in your exam. अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन शेल मॉडल भी दिखाना होगा, and you also need to show the triple covalent bond. The one nitrogen atom is coming with 3 to share 3 electrons. The other nitrogen atom is coming to share its 3 electron. Altogether the 6 electrons have been shared, or 3 pair of electrons have been shared. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लियरली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इथाइन देखो, हमने इथीन देखा था, दैट वाज C2H4। दिस इज इथाइन। अब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम रिड्यूस हो गए हैं, तो शेयरिंग किसके बीच में बढ़ जाएगी, 2 कार्बन एटम के बीच में। अब दोनों को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 4 है, 3 इन्होंने और शेयर कर लिए, तो कितने बना लिए, 7। राइट, सो 3 इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, 3 पेयर्स, और 1 1 की नीड रह गई। अब वो 1 1 की नीड कौन पूरी कर देगा, हाइड्रोजन एटम आके पूरी कर देगा। तो अगर आप इथाइन का एग्जाम्पल देखते हो, तो it has 1 triple covalent bond and 2 single covalent bond. ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। दे विल गिव यू कंपाउंड एंड दे विल आस्क यू कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बेसिक मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि किस एटम को कितनी नीड है। अकॉर्डिंगली आई में डिसाइड कि उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो वो 1 अपना शेयर कर लेगा, 2 की नीड होगी तो वो 2 शेयर कर लेगा, 3 की नीड होगी तो वो 3 शेयर कर लेगा, 1 शेयर करेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर होंगे तो
डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. So with this we have completed our bonding. We have learned about ionic bonding, we have learned about covalent bonding. Now we have seen the bonding. One bonding is formed by transfer of electron and one bonding is formed by sharing of electron. Now we are going to learn the properties of the two compounds, two types of compounds one by one. First is the ionic compound. Very simple children. Ionic compounds हमेशा आपको hard solid मिलेंगे. जैसे सोडियम क्लोराइड. सोडियम एंड क्लोराइड कितना भी हीट कर लो, चैप्टर 1 में पढ़ा था, until and unless आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास नहीं करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करोगे, राइट, तब तक वो डिसएसोसिएट नहीं हो सकता. सो इट इज वेरी हार्ड. व्हाई इट इज वेरी हार्ड? क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आयंस के बीच में. जो ऑपोजिट चार्जेस, जब आयंस जो होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, जब वो कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच मेक्स इट हार्ड. अब इसी की वजह से, सिंस दे हैव वेरी 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 स्ट्रॉन्ग force of attraction between the ions, so we need lot of amount of heat energy to break their bonds. So जब हमें बहुत ज्यादा heat energy चाहिए to break their bond, so we can also say that they have high melting and high boiling point. तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि वो हार्ड सॉलिड थे. हार्ड सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से बने, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे कैन आयनाइज. अब वाटर में डिजोल्व करने के लिए, होने के लिए आयनाइज होना बहुत जरूरी है. They can ionize, that is why water can separate the ions. So that is why they are soluble in water. They can also conduct electricity. Reason is same. इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट हो सकती है जहां पे कंडक्शन वे मिल जाए. और कंडक्शन वे कौन दे सकता है? ओनली मोबाइल आयंस. द फ्री आयंस कैन हेल्प द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. दैट इज व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सब कुछ उनकी बॉन्डिंग ही बता रही है. बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो बहुत हार्ड है. अब उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तो ब्रेक करने के लिए बहुत हीट चाहिए होती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. सिंस उन वाटर उनके आयंस को सेपरेट कर पाता है, इसीलिए वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. उनके पास फ्री आयंस होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अब यही वाली सिचुएशन हम समझते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा? कोवेलेंट कंपाउंड्स लिक्विड्स और गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. शेयरिंग से बने, शेयरिंग इजीली ब्रेक हो जाएगी. अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए. लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हीट कैन ब्रेक देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दे आर नॉट ऑपोजिटली चार्ज. उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, जस्ट शेयरिंग है. दे आर कमिंग टुगेदर इन वेरी क्लोज एफिनिटी. कनेक्ट नहीं कर रहे वो. आयनिक बॉन्ड में वो कनेक्ट कर रहे हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड में दे आर कमिंग वेरी क्लोजर, जिससे वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर पाए, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर. आयनिक बॉन्ड में एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में दे आर जस्ट इन द क्लोजर एफिनिटी. तो एक छोटा सा जो वीकर फोर्स है लगाएंगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएगा. लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू शैटर दैट वीक फोर्स. इसीलिए जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो यूजुअली यू डोंट फाइंड देम इन सॉलिड. बल्कि अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड देखोगे, दे आर हार्ड, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. अब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप समझ सकते हो. भाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो थोड़ी सी हीट चाहिए. तो बहुत थोड़ी सी हीट, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 77 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दोगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा. नैप्थलीन 80 डिग्री सेल्सियस पर वो स्प्लिट हो जाएगा, राइट. इट विल डिसअपियर because it is sublime, it will turn into gases. Insoluble in water. They do not dissolve in water. Rather, they are soluble in organic solvents. आप इन्हें किन्हीं भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ये इजीली डिसॉल्व हो पाते हैं. सिंस दे डू नॉट हैव आयंस, आयंस तो ये बना नहीं रहे क्योंकि गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट रहते हैं, तो वो न्यूट्रल से रहते हैं. जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होनी चाहिए.
सिंस कोवलेंट कंपाउंड्स के पास कोई फ्री आयंस नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. You may also expect the difference between ionic compounds and covalent compounds in your exam. And from this topic, you also get the reasoning question कि covalent compounds mostly liquids और gases में क्यों exist करते हैं. The reason is very simple. क्यों exist करते हैं? क्योंकि उनका weak force of attraction होता है. Whereas ionic compounds solids ही क्यों है? क्योंकि उनका strong force of attraction है. Ionic compounds का high melting point क्यों है? भाई ज्यादा heat चाहिए to break their intermolecular force of attraction. कोवलेंट कंपाउंड्स में वीक फोर्सेस है तो वी रिक्वायर वी रिक्वायर कंपैरेटिवली लेसर हीट. They are soluble in water, they are insoluble in water. They can conduct electricity, they cannot conduct electricity. Why? क्योंकि ionic compounds तो ionize हो जाते हैं आराम से, whereas covalent compounds तो ions form करते ही नहीं है. So with this, we have completed the most important topic from this chapter, from which the question will definitely come. The bonding, they will ask you to show the formation of any compound. It can be a covalent compound, it can be a electrovalent compound. और ये आप कोई भी पेपर उठा लो, any paper from last 10 years, the question from this topic was definitely there in the exam. So this is the topic not to be missed about. So I hope you all have understood. If you have any queries, you can drop down. And thank you for today. We'll meet next for the next topic, that is extraction of metals, and another most important topic from this chapter, from which the question in 4 markers will definitely come. So for now, bye bye.